Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and just give you a small recap of the previous thing that we have discussed. The topic, okay, that was the income determination and multiplier. Okay, so income determination, that is, there are two methods by which income is determined. That is ADAS approach by the Keynesian, okay, by Professor Keynes, or you can say according to the Keynesian theory the economy is in equilibrium when AD is equals to AS or S is equals to I. So in the previous video, we learned about that is ADAS approach. So ADS approach, we have to make this table and then this diagram, right, where AD and AS intersect, that is the equilibrium level, and it is also known as effective demand. Okay. Then similarly, there is a point when S is equals to I also, when where AD is equals to AS. At the same time, at the same, you can say the employment level, S is equals to I also. You can see here that is AD is equals to AS at 400 is equals to 400. Similarly, S is equals to I, that is saving, that is 40, and investment is also 40. Okay, so you can say that is the equilibrium level of income, right? So when AD is more than AS, then what happens? Everything we have discussed. And when AD is less than AS, that is according to this table also, I have already given you everything. Okay, to clear you everything. Explanation has been given. Okay. Now the next point is saving and investment approach. Okay, this is again according to the Keynesian theory, that is the equilibrium is level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment. Now the same you can say the table we are using here, that is income is 0, 100, that is a difference of 100 each, then consumption 40, and then 80 का difference लेके चल रहे हैं, right? Then saving is what? That is income minus consumption, you will get saving. सेम वही टेबल है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है. नाउ इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, वी नो दिस. ओके, नाउ वेयर एवर the point where saving is, you can say, more than investment. Okay, here you can say saving is less than investment. पहले तो क्या है, saving negative में ना, तो it is less than investment. So what happens here, जब saving हमारे पास कम है, ठीक है, saving कम है और investment ज्यादा है, then households are consuming, okay, and planned inventory will fall. Okay, and production will we need more production, more output, employment and income will increase. Okay, so I will give you the notes of each and everything, but remember here, जहाँ पे equilibrium है, यहाँ पे क्या है, S is equals to I, that is saving is equals to investment, that is the equilibrium level. Okay, now here the point where saving is more than investment. Okay, saving यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट आपका कम है. जब सेव कर रहे हैं लोग ज्यादा, इसका मतलब है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री हमारे पास रखी रहेगी. ठीक है, सो इन्वेंट्री क्या होगा, इन्वेंट्री रखी हुई है, सो रिड्यूस प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास रखा हुआ है ऑलरेडी सामान, तो वो अभी तक यूज नहीं हो रहा, बिकॉज पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग, दे आर सेविंग मोर. ओके, सेविंग ज्यादा हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सेविंग ज्यादा हो रहा है एंड इन्वेस्टमेंट इज लेस. सो व्हेन सेविंग इज मोर, इट मींस पीपल और हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग, so inventory is more, so we will reduce the production, employment will reduce, output will reduce, and income will reduce. Okay, so we will just check it out in the next slide also. Everything is clear over there also. Now how you're going to make or draw the this diagram. saving का देखो सिर्फ इतना है ये, ठीक है, सेविंग का ये पार्ट है, मैं देखो बता देती हूँ, जस्ट वेट. ये हमने किया था प्रीवियस वीडियो में एडी एंड एएस अप्रोच. ठीक है, यहां तक हमारा एडी एंड एएस अप्रोच है, राइट. अब इसी से अगर कहा जाए कि आपको एडी एएस अप्रोच से ही आपको सेविंग वाला और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला आपको अप्रोच की आपको डायग्राम बनाना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू मेक. फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ एडी एंड एएस. एडी एंड एएस का कर्व सबको पता है ना, दैट इज 45 डिग्री. आप पहले सबसे पहले ये ड्रॉ कर दोगे, ये हो गया आपका एएस. ओके, एंड दिस इज योर एडी, सी प्लस आई. जहां पे इक्विलिब्रियम है, बस वहीं से आप नीचे एक और ड्रॉ करेंगे, y ओरिजिन एंड x एक्सिस. ओके, एंड देन यू नो सेविंग इज नेगेटिव. सेविंग आपको पता है नेगेटिव है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, पहले ये इक्विलिब्रियम है, यू विल ड्रॉ द इन्वेस्टमेंट लाइन. ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है. इन्वेस्टमेंट की लाइन स्ट्रेट पैरेलल टू x एक्सिस. क्यों है, बिकॉज इट इज ऑटोनोमस. ओके, इट विल नॉट चेंज. तो ऑटोनोमस है तो इन्वेस्टमेंट आपका कोई भी चेंज नहीं करेगा. आप देखोगे जहां से आपका ये इक्विलिब्रियम था, बस इस स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे और यहाँ पर इसको कट कर देंगे. ठीक है,
यहाँ जहां से ये कट हो रहा है, बस आपको सेविंग यहीं से लेके आपको यहाँ से इसको कट करके बना देना है। सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होगी। ओके, ये नेगेटिव आप कितना था, 20 था, देन 40 था, तो सेविंग आपका नेगेटिव है। गॉट इट? अच्छा, एक चीज और होती है कि हियर सेविंग इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग आपकी लेस है ना। इन्वेस्टमेंट की देखो लाइन ऊपर है, व्हेन सेविंग इज व्हाट, यू कैन से लेस देन इन्वेस्टमेंट। यही चीज आ गई ना, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ओके, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होगा, हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग, हाउस होल्ड आपके कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है सेविंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, प्लान इन्वेंट्री विल फॉल डाउन। ओके, विल फॉल, देन उसकी वजह से क्या होगा, हमें प्रोडक्शन, आउटपुट, मैं एक साथ लिखे दे रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ये सब चीजें क्या होंगी, इंक्रीज कर जाएंगे इस पार्ट पे जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ हियर इन दिस पार्ट सेविंग का कर्व देखिए ऊपर है। ओके, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, then what happens, okay, when saving is more than investment, it means people are not consuming, people मतलब household, household आपके not consuming, and inventory आपकी रखी रह जाएगी, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा रहेगा, तो इन्वेंट्री राइज करेगी। देन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, आप जब ऑलरेडी इन्वेंट्री है, सो यू डोंट नीड मोर प्रोडक्शन, रिड्यूस कर जाओगे, आउटपुट भी रिड्यूस कर दोगे, एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस कर देंगे, एंड नेशनल इनकम विल ऑल्सो फॉल डाउन। ओके, so these are the two cases what will happen if equilibrium is not there। अगर equilibrium नहीं है, S is equals to I नहीं है, saving is equals to investment नहीं है, then what will happen, I have just already explained you। okay, रिमेंबर दिस, आपको भी ऐसे एक्सप्लेन करना है, पहले एडीएएस का आपको डायग्राम बनाना है, फिर जहां पे वो इक्विलिब्रियम है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा, एक सिंपल आपको पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस बना देनी है, एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। ओके, और सेविंग आपका आपको पता है कि ये आता है नेगेटिव से स्टार्ट होता है, सो यू विल जस्ट ड्रॉ लाइक दैट। ओके, और इक्विलिब्रियम आप इस तरह दिखा देंगे। एंड हाँ, रिमेंबर वन मोर थिंग, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तो ये नीचे एक्स एक्सिस पे रहेगा, राइट, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड या एडीएएस यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर आपको सिर्फ पूछा गया है एडीएएस अप्रोच, देन यू विल ड्रॉ ओनली दिस मच। अगर एसआई अप्रोच बोला गया तो सिर्फ आपको ये ड्रॉ करना होगा, राइट। अगर दोनों चीजों से बोला जाएगा कि एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच दोनों आप कॉम्बिनेशन में दिखाएं, देन यू विल ड्रॉ लाइक दिस। ओके, now explanation here, investment curve जो मैंने I बताई थी is parallel to the x-axis because of autonomous nature। okay, saving curve slopes upward which shows that as income rises, saving also rises। at point E, saving investment curve intersect each other। at point E, x end saving is equal to x end investment and OY is the equilibrium level of output। तो ये इस डायग्राम का आपका explanation था ये। now when saving is more than investment, जब देखो सेविंग ज्यादा हो रही है, means households are not consuming। okay, households are not consuming, as a result inventory rise, जो आपने रखा हुआ इन्वेंट्री स्टॉक प्लान इन्वेंट्री है वो आपका राइज कर जाएगा। you don't need more production, employment, output, income, these all get reduced। okay, ये सब रिड्यूस कर जाएंगे। it will continue till S is equals to I। ठीक है, when saving is less than investment, सेविंग जो है कम है, it means the households are consuming, it means planned investment, it means household are consuming more and saving less, planned inventory will fall, firms will increase the production, employment and output will increase, okay, and income level also increases, and it will continue till S is equals to I। okay, now equilibrium level, according to the Keynesian theory, equilibrium level can be achieved at 3 points। okay, that is full employment level, underemployment level and over full employment level। now you remember here, इसमें आपको सिर्फ करना क्या है, आपको पहले एडीएएस का जो आपको अप्रोच में आप डायग्राम बनाते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, सिंपली है और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो here we have the ADAS approach. ये रहा Y, O and X. ये रहा ADAS. ओके, ये आपका हो गया इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब देखो AS हमें पता है ऐसा 45 डिग्री से जाता है. AD आपका ये आता है. ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन है. दिस इज द कंडीशन. यहाँ पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज व्हाट, वेयर AD is equals to AS. Okay, and at this point, at this equilibrium point, what happens here, that is the people who are willing to work, okay, it's written here, the people who are willing to work at prevailing wage rate are able to find employment and there is no involuntary unemployment. Okay, जो लोग चाहते हैं काम करना वो कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो ये फर्स्ट आपकी कंडीशन हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट वाली. ओके, गॉट इट हियर. सेकंड में क्या बोल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम तो यही आपका है, लेकिन अंडर इसका मतलब है इसके नीचे डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है. अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, डिमांड क्या है आपकी, AD1 हो गई है. देन इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका कर्व कट कर रहा है, इट मीन्स क्वांटिटी भी आपकी फॉल कर जाएगी. ये क्वांटिटी थी ना, this quantity will fall down because now demand is not more. Okay, so before a full employment level, employment level के पहले, full employment level के पहले की जो condition होगी वो आपकी ये आ जाएगी. right? Now comes here over full employment level. Over full employment level में क्या है, simple आपने ये draw किया, Y O X. Okay, and this is AD and AS and this is output, income or employment, whatever you can write over there like this. दिस इज AS एंड दिस इज AD. वही वाला कर्व बनाया. ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम है. राइट, ना ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे था, इसके ऊपर चला गया. ठीक है, तो यहाँ कहीं पे हो गया. दैट मीन्स क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ा दी जाएगी. एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम, यानी कि जितना भी आपका वो था वहां पे, फॉर एग्जाम्पल हियर कि जितना ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में आपका क्या सिचुएशन हो गया, दैट इज पीपल आर willing to work at the prevailing wage rate. Okay, they are getting the employment. Okay, and over full employment का मतलब क्या हो गया, that is AD is equal to AS beyond the full employment level. It occurs after the full employment level. Okay, so इसकी वजह से क्या होगा, beyond the full employment output, it will lead to increase in general price level. Okay, ये होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट स्टिल अगर कुछ टाइम के लिए हो जाता है, सो यू कैन सी दैट इज कि आपका क्या हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया. राइट, AD बहुत ज्यादा हो गया एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशन, एंड देयर विल बी नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट. और आउटपुट उतना इंक्रीज आपका नहीं करता है. राइट, ठीक है. So with this we come to the end of this part here, and in the next you can say the video, we will do here, we will discuss the multiplier. Okay, concept of investment multiplier, you will get a question on this also. And ADS approach very important. Okay, इसको diagram से और सब चीजों से आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि what will happen. Okay, and the reasons why when AD is more than उसके क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे, इम्पैक्ट क्या होगा when AD is more than AS or when saving is more than investment. Okay, ये सब आपको आना चाहिए. Okay, I hope you understand it very well and keep watching, keep learning. Okay, and thank you for watching. Thank you so much.